Today we are going to study electricity chapter of class 10th. Let's see what is there for us in this chapter. What is the meaning of electricity and why do we have to study this chapter? So electricity is a basic part of our life and it is one of our most widely used form of energy. जैसे लाइटिंग के लिए हीटिंग, रेफ्रिजरेशन, एसी, पावर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इस सब में हमें किस फॉर्म ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है? इसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। चार्ज, इसमें हमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करती है उसमें एक्चुअली में फ्लो क्या करता है, चार्ज फ्लो करता है उसमें। तो चार्ज का जो सिंबल है वो हमें पढ़ना है, तो क्यू से उसको हम क्या करते हैं, सिंबलाइज करते हैं, शो करते हैं, क्यू कैपिटल और कहीं पे आपको स्मॉल में मिल जाएगा। सो ईच मैटर कंटेन्स सम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। सो electricity is the fundamental characteristic of any matter. The charge possessed by proton is called positive charge, while the charge possessed by electron is called negative charge. Neutron has the particle that has no charge, and two characteristics like charges repel each other, while unlike charges attract each other. And electric charges are made up of two types of charges, proton and negative charge electron. Both have same magnitude of charge, only difference in their sign. Positive sign with proton and negative sign with electron. What is the meaning of insulator? Insulation means resist or obstruct, or we can say hindrance. So what is the difference between conductor and insulator? Conductor is a material that easily conducts electric current, and an insulator is a material that obstructs the flow of electric current. So most metals are good conductor, as we know, because they have free electrons in them. The examples are copper, silver, gold, and the best conductor we know is silver. Insulator is a material that obstruct the flow of electric current and they do not have free electrons in them. Example is rubber, wood. These are insulators. The charge of electron, as I said, minus 1.6 into 10 power minus 19 coulomb, because the unit of charge is coulomb. Now, the proton has 1.6 into 10 power minus 19 coulomb charge and with plus sign. So the unit of current is ampere, but the unit of charge is coulomb. So if we have to tell how much ampere is 1 ampere, so 1 ampere is when 1 coulomb of charge flowing through a conductor in 1 second, then we can say that that conductor is giving us 1 ampere of current. So the unit of current is ampere and the unit of charge is coulomb, and the unit of time we know that it is second. So electric current can be defined as the flow of electric charge is known as electric current. It is denoted by letter I. Electric current is expressed by the rate of flow of electric charge. Since rate of flow of electric charge, so Q upon T is what? Our electric current. So rate of flow means the amount of charge flowing through a particular area in unit time. And area is ऑफ कंडक्टर. कंडक्टर के एरिया के बारे में हम बात करते हैं कि कितने एरिया से जो है यूनिट टाइम में कितने अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रही है, वही उसका क्या है, करंट है. सो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम एंड ऐसा यूनिट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ए. सो इफ पॉजिटिव चार्ज फ्लोज, डायरेक्शन ऑफ करंट is same as direction of flow of charge, and if negative charge flows, direction of electric current is opposite to direction of flow of charge. So we can see here current is equal to charge upon time, I is equal to Q upon T, where I is what? Current in ampere, Q is charge in coulomb and T is time. So ऐसा यूनिट में आप ऐसे लिख सकते हैं 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड. अभी आपके न्यूमेरिकल में हमेशा एम्पियर में ही करंट नहीं दिया रहेगा, कभी आप मिली एम्पियर में देख सकते हैं उसको. व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एम्पियर बिकॉज एम्पियर इज ऐसा यूनिट. So 1 milliampere is equal to 10 power minus 3 ampere, and when 1 microampere is equal to 10 power minus 6 ampere. So 1 ampere is how much? 1 coulomb per second. तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इसको ध्यान रखना है कि मिली एम्पियर में दिया है तो हाउ वी हैव टू चेंज इट इन टू एम्पियर. Definition of 1 ampere: when 1 coulomb of charge flow through any cross section of a conductor in 1 second, the electric current is said to be 1 ampere. So 1 ampere is how much? 1 coulomb per second.
आप देख रहे हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज जो होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन में इतने कूलम ऑफ चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। देखें, आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं और एक और इसका मेथड है, फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू NE, where n is number of electron and E is charge on electron। तो आपको निकालना है n। तो n कैसे निकालेंगे आप देख लें, Q डिवाइडेड बाई E। तो Q कितना दिया है, Q जो है वो आपका चार्ज है, तो आपको निकालना है कि 1 कूलम चार्ज में कितना, तो 1 लिख देंगे, और E जो है क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करेंगे तो आपकी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी 1 कूलम चार्ज में, ये यहाँ से निकल जाएगा। एक मेथड ये है, और दूसरा मेथड जो है आपका वो यूनिटरी मेथड है। तो आप यूनिटरी मेथड देखेंगे यहाँ पे कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है 1 कूलम ऑफ चार्ज में इतने नंबर ऑफ कूलम होते हैं, 1 कूलम चार्ज में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आपको 1 जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको आप ऐसे यहाँ भी देख सकते हैं। देखिए कि जब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम में एक इलेक्ट्रॉन है, तो आपको बताना है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब इतने कूलम में एक इलेक्ट्रॉन है, तो 1 कूलम में क्या होगा, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर मिल गया कितना, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी आप देखें कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंसुलेटर के थ्रू फ्लो नहीं करती है, क्योंकि इंसुलेटर में क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशन, वो फिक्स होते हैं, वो फ्लो नहीं करते। और जब फ्लो नहीं करेंगे तो जो होगी चार्ज वो फ्लो नहीं करेगी, तो कैसे होगा, उसमें इंसुलेटर होता है ऐसी चीजें। तो जब चार्ज फ्लो नहीं करेगी, तो आप देख रहे हैं कि नेगेटिव का साइन में इस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव, और करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव की तरफ होती है। ये कन्वेंशनल लिया गया है पहले से ही, तो ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड होती है। ठीक है, आमीटर इज अ डिवाइस टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट। करंट की क्या वैल्यू है उसके लिए एक डिवाइस है, उसका नाम है आमीटर। एक और डिवाइस है जो आपको बताया जाएगा, उसका नाम है गैल्वेनोमीटर। वो मैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़ना है। गैल्वेनोमीटर इज ऑल्सो अ डिवाइस दैट मेजर्स वैल्यू ऑफ करंट। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आमीटर एंड गैल्वेनोमीटर? Ammeter cannot tell you the direction of the current, but galvanometer tells us the direction of the current. One difference. दूसरा डिफरेंस क्या है ammeter और galvanometer में? दूसरा डिफरेंस ये है कि ammeter जो है वो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट को नहीं मेजर कर सकती है, बट galvanometer कैन मेजर ऑल द फ्रैक्शंस ऑफ करंट। बहुत स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट को भी मेजर किया जा सकता है। ठीक है, सो अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन सर्किट थ्रू विच करंट इज टू बी मेजर्ड। तो उसको सर्किट में लगाया जाता है जहां सीरीज में, हमेशा सीरीज में लगाएंगे। अगर आप उसको पैरेलल में लगाओगे तो वो करंट मेजर ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, अभी हम दिखाते हैं आपको कि सीरीज और पैरेलल का मतलब क्या है। लाइक यू कैन सी ए बी एंड पी, ये जो पी एस है, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल में है। ये कनेक्शन अगर ऐसा हो जाएगा तो उसको पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। और पी एस और क्यू आर, ये जो दो वायर हैं, ये एक दूसरे के सीरीज में कनेक्शन है। तो अमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, और वोल्ट मीटर, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अभी पढ़ना है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल भी आपको बता दिया गया, और सीरीज किसको बोलते हैं वो भी। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों उसको अमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो लेट्स सी व्हाई अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। एन अमीटर इज अ डिवाइस व्हिच मेजर्स द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट। एक सर्किट में कितनी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रही है उसको मेजर करने के लिए अमीटर का यूज किया जाता है। इट इज अ वेरी लो रेसिस्टेंस डिवाइस। इसकी रेसिस्टेंस बहुत कम होती है। रेसिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, इसमें बहुत कम जो होती है वो रेसिस्टेंस होती है। इफ इट विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल, क्वेश्चन यहां से भी आएगा, what will happen if ammeter will be connected in parallel? So it would draw most of the current and would get damaged. सारा करंट ये ड्रॉ कर लेगा और डैमेज हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, इसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक, तो आप देखें यहाँ पे क्या किया गया है, आमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया गया है और वोल्ट मीटर को पैरेलल में। अगर ऐसा कनेक्शन आपको दे और पूछा जाए दो इस तरह से डायग्राम देके पूछा जाए कौन सा डायग्राम, सर्किट डायग्राम सही है, तो पहला वाला जो होगा जिसमें टिक मार्क है वही सही है। ये गलत है, क्योंकि इसमें वोल्ट मीटर को सीरीज में कनेक्ट किया गया, जो कि कभी नहीं करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि दो पॉइंट होता है, जैसे आप देख रहे हैं ए और बी के बीच में दो पॉइंट जो है ए और बी, इसके बीच में कितना वर्क डन किया गया 1 कूलम चार्ज को फ्लो करने के लिए, इसे ही हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट के बीच में, इलेक्ट्रिसिटी का दो पॉइंट जब होता है उनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए तभी चार्ज फ्लो करेगी, वही डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वन जो पर यूनिट चार्ज का मतलब क्या हो गया, 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए, या अगर ये पी क्यू होता तो पी पॉइंट से क्यू पॉइंट पर जाने के लिए कितना जूल वर्क किया है 1 सेकेंड के अंदर, इसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती है यूनिट, वोल्ट। So 1 volt is the potential difference between 2 points if 1 joule of work has to be done. अगर 1 वोल्ट के बारे में पूछे तो 1 जूल की बात करेंगे हम, क्योंकि यूनिट में लेंगे सबको। सो इफ 1 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन टेकिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जैसे वाटर हमेशा हाई लेवल से लो लेवल मूव करती है, वैसे इलेक्ट्रिक करंट का भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब ही होता है डिफरेंस, तो कितना किसी दो चीज के बीच में डिफरेंस होना चाहिए तभी फ्लो होगा, वाटर के केस में, चार्ज के केस में, है ना। तो इस डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हम सेल लगा सकते हैं, हम बैटरी लगा सकते हैं, है ना। तो एसी डीसी कोई सा भी लगा सकता है। डीसी के फॉर्म में हमने आपको बताया कि आप सेल लगा सकते हैं, बैटरी लगा सकते हैं, है ना। सो द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल मे बी प्रोड्यूस्ड बाय ए बैटरी कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल जनरेटेड ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता है। जैसे सेल को कनेक्ट करते हैं वायर से, करंट फ्लो करने लगती है, कहां से कहां की तरफ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, क्योंकि हमेशा करंट फ्लो करती है हाई से लो की तरफ। तो इसीलिए जब हम सेल लगाते हैं तो करंट का फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है, कहां से कहां, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। व्हाट मेक्स द करंट फ्लो अराउंड द सर्किट, द डिफरेंस। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसी की वजह से करंट फ्लो करती है। सो बैटरी प्रोड्यूसेस द रीजन ऑफ हाई इलेक्ट्रिक प्रेशर एट वन साइड एंड लो इलेक्ट्रिक प्रेशर एट अदर साइड। इसी वजह से हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ से इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट फ्लोइंग अराउंड द सर्किट फ्रॉम ए हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। वी कॉल दिस डिफरेंस इन एज पोटेंशियल डिफरेंस। इस डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जैसे वाटर के पंप में आप देखें कि जहां पे हाई वाटर पोटेंशियल होती है वहां से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है, तो डिफरेंस हमेशा मेंटेन रहता है, हायर प्रेशर की तरफ से लोअर प्रेशर की तरफ जाता है। और पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन वोल्ट। यस, सो पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट, वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। आप V इज इक्वल टू W अपॉन Q देख सकते हैं, वेयर W इज वर्क डन, Q is quantity of charge moved, and SI unit of potential difference is 1 volt. So 1 volt is 1 joule per 1 coulomb. ठीक, अब यहाँ देखें इसी को फिर से दिखाया गया, व्हाट इज 1 वोल्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ये जो दो पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, इसके बीच में 1 वोल्ट कब होगा, जब 1 जूल ऑफ वर्क किया गया है, किसको मूव करने के लिए, चार्ज को मूव करना। इलेक्ट्रिसिटी में हमेशा चार्ज फ्लो करती है, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज को फ्लो करने के लिए अगर 1 जूल ऑफ वर्क काम किया जाता है, इसका मतलब ए और बी के पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 1 वोल्ट। ठीक, सो वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, as you can see it is an instrument, it is used for measuring electrical potential difference between two points in an electric circuit। और इसकी रेसिस्टेंस हाई होती है, आमीटर की रेसिस्टेंस वेरी लो है ना। सो इसकी रेसिस्टेंस हाई होती है, सो दैट इट टेक्स नेग्लिजिबल करंट। रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी यानी कि रुकावट बहुत ज्यादा है तो करंट ही नहीं फ्लो करेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट आप देखें कि नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है इसमें, वाई वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। Voltmeter have high resistance, so in series they would greatly decrease the current going to the circuit। तो जैसे ही वो सीरीज में जाएंगे तो वो क्या करेंगे, करंट को डिक्रीज कर देंगे, तो आपका काम जो है वो डिवाइस का हो ही नहीं पाएगा। इसलिए ये वाला जो है फर्स्ट जो टिक मार्क है करेक्ट, वो वाली आपकी सर्किट डायग्राम बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने जो वोल्ट मीटर है उसको पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, हाई रेसिस्टेंस की वजह से हम वोल्ट मीटर को क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट किसको कहते हैं, तो सर्किट क्या है, इट इज ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फॉर एग्जांपल
जो आपको यहाँ फिगर दिया गया है, आप देखें यहाँ पर इसको, फिगर को देखिए। इस फिगर में दिखाया गया है कि ये सर्किट जो होगी क्लोज्ड एंड कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस। कहीं पे भी ब्रेक होगी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई ब्रेक हो गया तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगी, आप जो भी स्विच ऑन किए हैं वो रुक जाएगी। जैसे आप टॉर्च को आप स्विच ऑन करते हैं तो क्या होती है, सर्किट को आप कंप्लीट करते हैं, सर्किट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी टॉर्च जो है आपकी वो जलने लगेगी। और इसी तरह से आप जब स्विच ऑन करते हैं, फैन ऑन हो जाता है यानी आप सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं। तो क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ करंट टू फ्लो इज कॉल्ड सर्किट। करंट फ्लोज ओनली इफ इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर्म्स क्लोज्ड लूप। अगर क्लोज्ड है, कहीं पर भी ब्रेकेज है तो आपकी जो भी कनेक्शन है वो नहीं जलेगी। अगर फैन है तो वो नहीं ऑन होगा, अगर आपकी बल्ब जल रही है तो वो नहीं जलेगी। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं प्लस और माइनस, ये क्या है आपके सेल का दिखाया गया है। पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए एक सेल लगाई गई है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी ये टेक्स्ट बुक में ये कुछ सिंबल्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिक सेल का आप सिंबल देख लें, जो थिन वाली जो वायर है जो आपकी दिख रही है टॉल, तो लॉन्ग जो दिख रही है वो है पॉजिटिव और ये पतली सी जो छोटी सी है वो माइनस है। बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। प्लग की को इस तरह से आप शो करेंगे, प्लग की और स्विच जब क्लोज्ड है तो ऐसा होगा, जो ओपन है तो ऐसा होगा। वायर ज्वाइंट इस तरह से होगा, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग यानी कि बिना ज्वाइनिंग का अगर वायर क्रॉसिंग को दिखाना है। इलेक्ट्रिक बल्ब को शो करना है सर्किट में, रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस आर, तो यहाँ पे जो है रेसिस्टर एक आर है तो इस तरह से। वेरिएबल रेसिस्टेंस ये हो गई। आमीटर ये आप इस तरह से लगाएंगे और प्लस और माइनस दिखाना बहुत जरूरी है। वोल्ट मीटर में भी आप देख लें प्लस और माइनस यहाँ पे लगाया गया है। तो ये आपका टेक्स्ट बुक में है, आप वहां भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है रेसिस्टेंस, जो हम बहुत देर से बात कर रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिस्टेंस? रेसिस्टेंस ऑल्सो नोन एज ओमिक रेसिस्टेंस। ओम ने इसको खोजा था इसलिए इसका यूनिट भी ओम है। सो इट इज अ मेजर ऑफ द अपोजिशन टू करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, कि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो कर रही है उसको कितना ज्यादा रुकावट मिल रहा है, वही रेसिस्टेंस है। जैसे हम जब मोशन करते हैं तो फ्रिक्शन क्या होता है, ऑलवेज गो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। इसी तरह से करंट के फ्लो को कितना रुकावट मिल रहा है, कितना अपोज हो रहा है, वही क्या है, रेसिस्टेंस है। सो रेसिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओम, सिंबलाइज्ड बाय द ग्रीक लेटर ओम। सो कंडक्टर्स का लो क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। लो इसलिए होता है क्योंकि करंट उससे बहुत ज्यादा फ्लो करती है, उसमें रुकावट कम है तभी तो करंट बहुत ज्यादा फ्लो कर रही है। इन केस ऑफ इंसुलेटर हाई रेसिस्टेंस इज देयर एंड इन केस ऑफ एलॉय वेरी हाई रेसिस्टेंस। यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस के केस में करंट को जो हाथ विद द हेल्प ऑफ हैंड्स it is shown that there is some hindrance in the flow of the current। करंट के फ्लो में कुछ हिंड्रेंस है, इसकी वजह से क्या है यहाँ पर रेसिस्टेंस जनरेट हो गई है। ठीक, ओम्स लॉ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का ये वाला कंटेंट। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके वो पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। इसे यहाँ लिख दिया गया है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो इन ऑर्डर टू रिमूव द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल we have to use a constant, और ये constant यहाँ पर क्या है, रेसिस्टेंस है। सो I is equal to V upon R, V is equal to IR। तो R क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं R is equal to V upon I, where R is constant for the given conductor and called resistance, and resistance is the property of a conductor which resists the flow of electric current through it। Component that is used to resist the flow of electric current in a circuit is called resistor। so resistor जो होता है वो component होता है जो किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, फ्लो को रेसिस्ट करता है। ठीक है, अब आप देखें जो V इज इक्वल टू IR, इसको ही आपको बताया गया है कि V इज इक्वल टू IR, ये ओम ने दिया था। ठीक है, क्योंकि ओम ने कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब इसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट यूज किया, दैट इज रेसिस्टेंस। सो व्हाट इज R? R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो अब आपको 1 ओम को, क्योंकि यूनिट रेसिस्टेंस की क्या है, ओम है, 1 ओम को डिफाइन करना है। 1 ओम ऑफ रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द फ्लो ऑफ 1 एम्पियर ऑफ करंट थ्रू ए कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 1 वोल्ट। ठीक है, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट मूव कर रही है और चार्ज आपका करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर, तब जो रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर में होती है उसकी वैल्यू होती है 1 ओम। तो आपको इस तरह से यहाँ पे ये समझ में आ गया।
अभी देखें ये ओम्स लॉ जो है इसमें क्या किया जाता है, ग्राफ से इसको दिखाया जाता है कि इसकी ग्राफ कैसे बनेगी, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को आपको एक्स और वाई पे रखना है। सपोज आपने नंबर ऑफ सेल्स एक भी यूज नहीं किया है तो करंट ही नहीं फ्लो करेगी और पोटेंशियल डिफरेंस भी कुछ मेंटेन नहीं होगा। अगर आपने नंबर ऑफ सेल्स 2 रखे हैं तो करंट फ्लो, अगर सपोज करते हैं कि उसमें जो करंट है 1.5 एम्पियर है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गई 3 हो गई, यानी कि आप नंबर ऑफ सेल बढ़ा रहे हैं तो करंट इंक्रीज कर रही है और करंट इंक्रीज के साथ साथ आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज कर रहा है। आप यहाँ देखें, आपने 4 लगा दिया तो 4.5 हो गई, फिर 9 हो गई, यानी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। तो यूनिफॉर्मली जब इंक्रीज होगा तो ग्राफ भी कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो आप यहाँ पे देखें कि ये जो V और I है उसमें स्ट्रेट लाइन बनी है। V जो हो सकता है वो आप x एक्सिस पे भी रख सकते हैं या आप y एक्सिस पे भी रख सकते हैं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को। तो आप यहाँ पर देखें कि मैंने जो यहाँ रखा हुआ है वो x एक्सिस पे करंट है, ये वाली x एक्सिस है, ठीक है। तो ये x एक्सिस पे करंट है और सॉरी x एक्सिस जो है ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, x एक्सिस पे करंट है और y एक्सिस पे वोल्ट है। तो आप यहाँ पे देखें कि किस तरह से है कि 1.5 यहाँ पे जब आपकी 1.5 एम्पियर करंट थी तो वोल्टेज कितना था 3 वोल्ट, इसी को आपने यहाँ पे लगाया है। देखो सारे स्ट्रेट लाइन आएंगे क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वी आई वैल्यू है यहाँ पे। उसके बाद दूसरा आपका क्या था 3 एम्पियर जैसी आपने किया करंट तो आपकी कितनी आ गई पोटेंशियल डिफरेंस 6, देखो 6 पे है। तो इस तरह से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जैसे आपने 4.5 पे किया तो 9 वोल्ट हो गई, अगर आपने 6 पे किया तो 12 वोल्ट हो गई, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है और ये वी आई ग्राफ एकदम करेक्ट बना हुआ है क्योंकि यूनिफॉर्मली जो है अगर आई इंक्रीज करेगी तो वी भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी अगर होती है तो स्ट्रेट लाइन बनता है, आपने ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देख रखा है। तो इसी तरह से होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड्स। कौन कौन से फैक्टर पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, लेंथ पे डिपेंड करता है और कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर आप लेंथ इंक्रीज करेंगे तो उसका रेसिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। सो रेसिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दिस मीन्स रेसिस्टेंस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दिस इज कॉज, क्यों ऐसा होता है, बिकॉज लॉन्ग इलेक्ट्रिक वायर क्रिएट्स मोर रेसिस्टेंस। जितनी ज्यादा लंबी आप लेंगे वायर उतनी ज्यादा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हिंड्रेंस मिलेगी और रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। और छोटी सी है तो इसका मतलब कि इसमें हिंड्रेंस कम है तो रेसिस्टेंस भी कम होगा, तो अच्छा गुड कंडक्टर होगा। तो 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर में अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो आप देख लें कि रेसिस्टेंस किसकी ज्यादा होगी, 12 सेंटीमीटर वाले वायर की, ठीक है। दूसरा कौन से चीज पे, कौन से फैक्टर पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया पे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी एरिया अगर इंक्रीज होगी तो रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं एस वाला जो है आपका सिलेंडर, इसमें एरिया बहुत ज्यादा है, तो एरिया अगर ज्यादा तो रेसिस्टेंस कम, इसीलिए आप कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। दिस मीन्स आर विल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द एरिया ऑफ कंडक्टर। जैसे ही आप एरिया इंक्रीज करेंगे तो आर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब आपके पास दो फैक्टर से आपको क्या पता चला कि एक बार आपने देखा रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, दूसरी बार आपने देखा रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल को या प्रोपोर्शनैलिटी को आपको हटाने के लिए एक कांस्टेंट फिर से चाहिए होगा और यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो है रो, दैट इज रेसिस्टिविटी। सो आर इज इक्वल टू रो लेंथ अपॉन एरिया, where R is resistance, rho is resistivity, L is length and A is area। तो आप तीसरा चीज देखें अब, नेचर ऑफ मटेरियल। वायर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल। डिफरेंट मटेरियल का बन सकता है, कभी कॉपर का, कभी एल्युमिनियम का। तो इस तरह की जो वायर बनती है उसका अलग अलग क्या होता है वैल्यू, रेसिस्टेंस के साथ वो अलग अलग वैल्यू देती है और ये सब किस पे डिपेंड करता है, रेसिस्टिविटी पे। सो जो वायर आप यूज करते हैं इट हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेसिस्टिविटी एंड इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ये जो होती है रेसिस्टिविटी नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है। सो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी। किसी भी मटेरियल की रेसिस्टिविटी कितनी होगी, बढ़ेगी या इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, वो उसके रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है। सो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी। और रेसिस्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे।
रेसिस्टेंस इस पे नहीं करता, नेचर ऑफ द मटेरियल पे सिर्फ रेसिस्टिविटी करती है। अब टेम्परेचर की बात करेंगे, रेसिस्टेंस ऑल्सो वेरीज विथ टेम्परेचर, रेसिस्टेंस इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा फ्लो करने लगते हैं, तो क्या होती है, हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए रेसिस्टेंस क्या करता है, इंक्रीज करता है विथ टेम्परेचर को इंक्रीज करने से। अब रेसिस्टिविटी देखें ये क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल सिंस द एसआई यूनिट इज ओम, रो की एसआई यूनिट ओम नहीं है, रो की है ओम मीटर, रेसिस्टेंस का कितना है, ओम है, एसआई यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर है। तो आप यहाँ देखें सब कुछ पुट करके आपको ये फॉर्मूला ऊपर वाला मिला हुआ है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो आप रो इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, R रहेगी और O जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और लेंथ जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब आपको सबकी वैल्यू ऐसा यूनिट पुट करें तो आप देखेंगे कि ओम मीटर क्या हो जाएगा, रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट हो जाएगा। अभी ये आपकी टेक्स्ट बुक की पेज है जिसमें रेसिस्टिविटी डिफरेंट सब्सटेंस का दिया हुआ है, कंडक्टर, एलॉयज, इंसुलेटर, सबकी रेसिस्टिविटी दी हुई है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में ये दिया गया रहता है और उससे आपको खुद से जो है रेसिस्टेंस निकालने के लिए देगा, कभी लेंथ निकालने के लिए आता है, सब कुछ रेसिस्टिविटी की वैल्यू दी रहती है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिमेंबर दिस। अब आप देखें यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, वेरिएबल रेसिस्टेंस एक नया टर्म है आपके लिए जो कि इसकी सिंबल दिखाई गई थी, इसे हम रियोस्टैट कहते हैं, द डिवाइस विच इज यूज्ड टू वेरी द रेसिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज फ्रॉम द सोर्स। यानी कि वेरिएबल रेसिस्टेंस, फिक्स वैसा डिवाइस जिसका फिक्स रेसिस्टेंस नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम रियोस्टैट बोलते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं रियोस्टैट का दो सिंबल आपके टेक्स्ट बुक में है, ये दोनों सिंबल आप क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें आप, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन जो है पूछ दिया गया है कि रेसिस्टेंस जो है प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर है जिसकी वजह से वो अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को, और रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऐसा यूनिट इसकी ओम है रेसिस्टेंस की, रेसिस्टिविटी की ओम मीटर होती है, ठीक है। और रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स करता है लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, जबकि रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे, ये लेंथ और इस पे एरिया पे डिपेंड कभी भी नहीं करती है। अभी आपको है कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑल द सब्सटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, गुड कंडक्टर, रेसिस्टर और इंसुलेटर। आपको पहले ही बताया गया है गुड कंडक्टर में क्या होती है, रेसिस्टेंस वेरी लेस होती है क्योंकि बहुत कम जो होती है हिंड्रेंस होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और गुड कंडक्टर का एग्जांपल कॉपर एल्युमिनियम है। रेसिस्टर क्या होती है, इसकी कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होता है, और इंसुलेटर का क्या, इन्फिनिटली हाई, बहुत ज्यादा हाई होता है बिकॉज इट डजंट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट। एलवाई को जो है कभी भी हम गुड कंडक्टर में तो रखते ही नहीं है, इंसुलेटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम लॉ को अगर वेरीफाई करना है तो सर्किट आप किस तरह से बनाएंगे, आप सर्किट बनाएंगे, करंट फ्लो कर रही है पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ, यहाँ अमीटर लगा हुआ है और अमीटर सीरीज में लगी है, एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, और करंट को मेजर करने के लिए अमीटर और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर, इसी तरह से आपको यहाँ पे लगाना है। और जो ग्राफ मिलेगी वो भी आपको बता दिया गया है, ग्राफ विल ऑलवेज फॉर्म स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो रेसिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेसिस्टर दो तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं, एक तो सीरीज में रेसिस्टेंस को कर सकते हैं, एक तो पैरेलल में। पहले हम समझते हैं सीरीज की बात। जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, व्हेन रेसिस्टर्स आर ज्वाइंड फ्रॉम एंड टू एंड दे आर सेड टू बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसे R1, R2, R3 ये सीरीज में कंबाइन है। तो सीरीज में कंबाइन है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो होती है अमीटर भी इसी के सीरीज में लगा हुआ है, और वोल्ट मीटर किस में लगा है, वोल्ट मीटर जो है पैरेलल में लगा है। एक चीज आप ध्यान रखें कि जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो करंट सेम फ्लो करती है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, और इक्विवेलेंट आर जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज करती रहती है। यानी कि जब आप रेसिस्टेंस लगाते हैं सीरीज में तो वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस तीनों का कंबाइन हो जाता है। यानी कि मुझे पूछे कोई इस सर्किट में कितनी रेसिस्टेंस है, तो R1 की वैल्यू प्लस R2 की वैल्यू प्लस R3 की वैल्यू, तीनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या सेम रहेगा, करंट सेम रहेगा। क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो इस तरह से रेसिस्टर इन सीरीज बनते हैं।
अब हम बात करते हैं रेसिस्टर इन पैरेलल। इससे पहले आप देखें कि रेसिस्टर इन सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अगर डिस्ट्रीब्यूट कर गया तो सबसे पहले हम उसे ही लिखते हैं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, आप यहाँ पर देख रहे थे ये वाला जो आपके पास डायग्राम था अभी, उसमें आपने देखा कि ये जो होगी पोटेंशियल डिफरेंस अगर मुझे निकालना है कि R1 से कितनी जाएगी तो यहाँ पर 1 वोल्ट मीटर लगेगा, R2 से कितनी जाएगी तो यहाँ 1 वोल्ट मीटर लगेगा, और R3 से कितनी जाएगी तो यहाँ 1 वोल्ट मीटर लगेगा। यानी आपको 3 वोल्ट मीटर लगा के पता करना पड़ेगा। तो आप वही लिख रहे हैं यहाँ पे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और ओम्स लॉ ने V इज इक्वल टू IR दिया है, और आप लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR V के प्लेस पे आपने लिख दिया। V1 के प्लेस पर भी आप V1 है तो I और R1। I क्यों हमने I1 नहीं लिखा? क्योंकि सीरीज में क्या होती है, करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, तो हमने इसलिए सारे I को कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखा, और अब क्या हो गई, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ की करंट कैंसिल हो गई I क्योंकि सेम थी, और आपका क्या बच गया, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जब कभी भी रेसिस्टेंस को इंक्रीज करना होता है तो हम सर्किट को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और जब कभी भी रेसिस्टेंस को डिक्रीज करना होता है तो हम पैरेलल में उसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आप सीरीज कनेक्शन में एक क्वेश्चन भी आपको दे रखा है कि चलो एक सर्किट है जिससे कि करंट 5 एम्पियर फ्लो कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है, और रेसिस्टेंस है 5 ओम, 2 ओम और 1 ओम। तो आपको बताना है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितनी होगी। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपने क्या पता कर लिया, 5 प्लस 2 प्लस 1 हाउ मच, 8 ओम। तो आपको ये यहाँ से पता चल गया कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सीरीज कनेक्शन के टाइम पे क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अब पैरेलल में आप देखें, यहाँ पे पैरेलल में आप देख रहे हैं डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो पैरेलल है इसमें R1, R2 और R3 तीन रेसिस्टर लगी हुई है पैरेलल में। इसमें पैरेलल में आपको क्या ध्यान रखना है कि करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो सबसे ऊपर आप देखें, यहाँ पे सबसे ऊपर करंट को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख दिया है। क्या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो V इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ से, तो I इज इक्वल टू व्हाट, V अपॉन R। तो जहां जहां पे अब I है वहां पे आपको V लिखना है डिवाइडेड बाय R1, फिर उसके बाद R2 जब होगा तब R2 लिखेंगे, और R3 के टाइम पे R3। आप इस तरह से देख लीजिए। तो V इज इक्वल टू IR में आपको क्या लिखना है, I इज इक्वल टू V अपन R लिख दिया, V अपन R आपने I की जगह पे लिखा। I1 के जगह पे क्या लिखेंगे, V अपन R1, I2 के जगह पे V अपन R2, और I3 के जगह पे V अपन R3। आप कॉमन ले लें, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिया आपने V, क्योंकि दोनों तरफ V जो है वो कॉमन है। V को कॉमन लेके कैंसिल कर दो, क्या बच गया, 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। So in this case, reciprocal of total resistance of the system is equal to the sum of reciprocal of the resistance of resistor। यानी कि जब आपको रेसिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करनी है तो आप पैरेलल में कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, अभी आपको ये देखना है कि ब्राइटनेस जो बल्ब की होती है वो डिपेंड करती है वोल्टेज पे, करंट पे नहीं करती। इन सीरीज अरेंजमेंट बल्ब डू नॉट ग्लो ब्राइट इफ मेनी बल्ब्स आर कनेक्टेड एज पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जब आप दो बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इसकी जो क्या हो जाएगी, बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ती है। सीरीज में करने से बल्ब की ब्राइटनेस नहीं बढ़ती, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और पैरेलल के केस में पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। ठीक है, अभी सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन में क्या है, क्या क्या एडवांटेज है। सीरीज कनेक्शन में आइदर ऑल डिवाइसेस आर ऑन, या तो सारे ऑफ रहते हैं। एक ऑन हो गया तो सारा का सारा ऑन हो जाएगा, एक ऑफ हो गया तो सारा ऑफ हो गया। इसलिए हम घर में कभी भी सीरीज कनेक्शन नहीं कराते। और दूसरा पॉइंट है, इन सीरीज कनेक्शन इफ वन डिवाइस फेल्स, अगर एक बल्ब फेल हो गई तो क्योंकि सारा बल्ब फेल हो जाएगा या ऑफ हो जाएगा, इसलिए ये भी आपका फिर अच्छा आइडिया नहीं है सीरीज में कनेक्ट करने का। और तीसरा है, इन सीरीज कनेक्शन ऑल डिवाइसेस विल गेट सेम करेंट, बट इन पैरेलल कनेक्शन डिफरेंट डिवाइसेस नीड डिफरेंट करेंट्स फॉर प्रॉपर वर्किंग। दैट इज व्हाई ऑल डिवाइसेस लाइक फैन, टीवी, फ्रिज, बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये क्वेश्चन में आता है कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। तो आप लिखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जूल का हीटिंग इफेक्ट है। उन्होंने क्या कहा था, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू हाई रेसिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम वायर, द रेसिस्टेंस वायर बिकम्स वेरी हॉट।
क्यों? क्योंकि जो हाई रेसिस्टेंस वाला वायर है उसके थ्रू तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट हो ही नहीं रही है। तो जितना भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप फ्लो करा रहे हैं, करंट जो फ्लो करा रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वो सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, हीट एनर्जी में। और इसे ही हम क्या करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप यहाँ देखें कि कुछ फॉर्मूला आपको अभी मिलेगा, नेक्स्ट मैं दिखा देती हूँ पहले कि फॉर्मूला जो यहाँ पर मिलेगा वो है लास्ट फॉर्मूला आपका ये कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये कहाँ से आया, क्योंकि जूल के लॉ ने क्या कहा हुआ है, जूल के लॉ ने कहा हुआ है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करेंट, ठीक है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करेंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। सो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी यहाँ से आ गया। अब आपको ये भी बताया गया है कि पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, और 9th क्लास में पढ़ा है पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टी। तो वर्क, क्योंकि वर्क की जो होती है यूनिट वो भी जूल होती है और हीट एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं P इज इक्वल टू H अपॉन टी, दोनों सेम ही है। और इसी तरह से आपने निकाल लिया हीट एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो H क्या हो गया, आपने H जो है यहाँ पे लिखा हुआ है P के बदले में आप VI लिख सकते हैं, फर्स्ट फॉर्मूले से VI लिख दिया इनटू टाइम, तो आपको क्या मिल गया, V की वैल्यू ओम्स लॉ से IR हो गई। तो आपने यहाँ पे क्या किया, V के बदले में IR लिख दिया, R तो आपने क्या लिखा हुआ है, V की जगह पे IR लिखा और I की जगह पे I लिखा, T की जगह पे T लिखा, तो आपका क्या आ गया, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इस तरह से हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट को क्या कर दिया, यहाँ पे दिखा दिया है, हाउ H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हीटिंग इफेक्ट का 3 पढ़ना है कि फॉर एक्सप्लॉइटिंग द हीटिंग इफेक्ट, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो जो एलिमेंट होती है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ताकि अगर हीट में जो कन्वर्ट होगा वो तुरंत ना मेल्ट करने लग जाए। सो द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड इन द फॉलोइंग एप्लीकेशंस। पहला, इलेक्ट्रिक बल्ब। व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी इज सप्लाइड टू एन इलेक्ट्रिक बल्ब, फिलामेंट बहुत ज्यादा हीटेड हो जाता है और इसकी वजह से जो होती है हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब हैपेंस बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसलिए हम क्या करते हैं, बल्ब के फिलामेंट को एक स्पेशल एलिमेंट से बनाते हैं जिसका नाम है टंगस्टन, और टंगस्टन का सिंबल होता है W। आप पेरियोडिक टेबल में W देखेंगे, वो टंगस्टन मेटल है। हैविंग मेल्टिंग पॉइंट इक्वल टू 3380 डिग्री C, इट ऑफर्स हाई रेसिस्टेंस एंड डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड इजीली। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाई डू वी नीड tungsten metal for making filament of bulb, because it offers higher resistance and it do not oxidized easily। और उसमें जो गैस फील्ड होती है वो नाइट्रोजन या कोई इनर्ट गैस जैसे आर्गन होता है। क्यों? क्योंकि अगर ऑक्सीजन वगैरह भरेंगे तो वो कंबसन प्रोसेस वहां पे कैरी आउट होने लगेगा। नेक्स्ट, आप यहाँ बल्ब में देख ही लें, स्ट्रक्चर देखें आप, इनर्ट गैस है, नोबल गैस भरी है, फिलामेंट है, यही ब्रेक हो जाता है तो आपका बल्ब काम करना बंद कर देता है। फिलामेंट क्या चीज की बनी है, टंगस्टन की। इलेक्ट्रिक आयरन आप देखें, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है वो जब सर्किट से कनेक्ट करते हैं आप उसको, तो एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन गेट्स हीटेड विच हीट्स द इलेक्ट्रिक आयरन। एलिमेंट इसका हीटेड हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो नाइक्रोम वायर का बना है, नाइक्रोम भी क्या है, एक एलॉय है। तो सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपकी 15 वॉट एम्पियर्स की फ्लो हो रही थी उतनी करंट की, तो क्या हो रहा है, वो सारा का सारा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इसीलिए हीट एनर्जी में जब कन्वर्ट हो जाता है तो उसका जितना भी हीटिंग एलिमेंट है वो क्या चीज का बनाया जाता है, एक स्पेशल एलिमेंट का जिसका नाइक्रोम नाम है, विच इज एन एलॉय, इट ऑफर्स हाई रेसिस्टेंस एंड प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो किसी भी ऐसे भी एलिमेंट का नहीं बना सकते, एक स्पेशल एलिमेंट का बनाना पड़ता है। थर्ड है फ्यूज। फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस फ्रॉम हाई वोल्टेज। इलेक्ट्रिक फ्यूज और एमसीबी में क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क करता है किस पे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, और एमसीबी जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे यूज करता है। फ्यूज, जब आपकी घर में फ्यूज उड़ जाती है तो आपको क्या करना पड़ता है, एक वायर, कंडक्टिंग वायर को चेंज करते हैं और आपका जो है फ्यूज फिर ठीक हो जाता है। जैसे ही बहुत हाई
करंट फ्लो करने लगती है आपके घर में, तो फ्यूज क्या हो जाता है, वो वहां से फ्यूज उड़ना यानी कि फ्यूज चले जाना आपका, तो इससे क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, पूरी सर्किट ब्रेक हो जाती है, पूरा आपका एप्लियंसेस बच गया, लेकिन मेन सर्किट में जो आ रही थी इलेक्ट्रिक करंट, वहीं से फ्यूज जो है वो ब्लो ऑफ हो जाती है। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्यूज इज मेड ऑफ मेटल और एलॉय ऑफ मेटल सच एज एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन। इन द केस ऑफ लो ऑफ हाई वोल्टेज देन स्पेसिफाइड फ्यूज वायर मेल्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस। एमसीबी के केस में ऐसा नहीं करना पड़ता, जहां से एमसीबी डाउन हो जाती है आप उसको अप करें, और इससे दूसरा जो होगा एप्लियंसेस वो डिस्टर्ब नहीं होता है। इसलिए नाउअडेज वी हैव स्विच टू एमसीबी। फ्यूज ऑफ 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5, 10 एम्पियर, ये सब का डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें, जो पावर का फॉर्मूला आपको पहला हीटिंग इफेक्ट से H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी मिल गई। 9th क्लास से P इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क का फॉर्मूला में हम वर्क एनर्जी और हीट एनर्जी दोनों सेम होता है, ठीक है ना, क्योंकि सबकी यूनिट जूल है, तो W के जगह पे आई स्क्वायर आर टी लिख दिया, और T की जगह पे जो डिनोमिनेटर में T था वहां T लिख दिया था। आपको क्या मिल गया, P का एक वैल्यू आई स्क्वायर आर भी आ गया। ये वैल्यू हम न्यूमेरिकल में कब यूज करेंगे, जब करेंट और रेसिस्टेंस दी रहे, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जब आपका पावर मांग रहा हो क्वेश्चन में और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया रहे, तो वी आई वाला यूज कर लेंगे। ठीक है, वी आई कहां से आया, आप यहाँ पर देख लें कि आई स्क्वायर की जगह पे तो आई स्क्वायर लिख दिया, और आर को हम क्या लिख सकते हैं, वी ओपन आई लिख सकते हैं, तो आई को हमने लिख दिया वी ओपन आई, तो आपको क्या फॉर्मूला मिल गया, वी आई मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है फॉर्मूला बहुत सारा आया हुआ है। पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर, कहां से आया, आप यहाँ पे देखें, I इज इक्वल टू वी अपन आर होता है। ठीक है, होता है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, I की जगह पे V अपन I और स्क्वायर लिख दिया, और मल्टीप्लाइड बाई R, तो क्या हो जाएगी, एक R ऊपर के एक R को कैंसिल करेगी नीचे वाली R, तो क्या बच गया, V अपन R बच गया, तो यहाँ पर आपका V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। तो इस तरह से आपने देखा कि P की पावर के लिए कितने सारे फॉर्मूला हैं, जो कि आप कहाँ यूज करेंगे, न्यूमेरिकल में। इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करने आएगा, तो द रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। वी नो दैट पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, हीट प्रोड्यूस्ड इज वी आई इंटू टी। वी आई आपको पहले बताया कहां से आया है, तो इसीलिए आपका जो H हो जाएगा वो आई स्क्वायर आर टी, ये आपका जूल्स लॉ से हो जाता है। ठीक है, अब पूछा जाएगा 1 किलोवाट इज हाउ मच वाट, तो 1000 वाट होता है, ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है। एंड 1 किलोवाट आवर ये कितने जूल के बराबर होता है, इट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। तो अगर आपको किलोवाट आवर को जूल में भी चेंज करना हो कि 10 किलोवाट आवर है, इसका आंसर आप जूल में दीजिए, या इट इज इक्वल टू हाउ मच जूल, ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो आप यहाँ से ये वाला फॉर्मूला याद करेंगे, तो आपका काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो एनर्जी की जो यूनिट होती है वो किलोवाट आवर या जूल दोनों में ही हो सकती है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मच जूल, ये भी आपको बता दिया गया है। तो आपका जो है इस चैप्टर के अंदर जितने भी फॉर्मूले थे, इट हैज बीन समराइज्ड इन 7 पॉइंट्स। फर्स्ट, Q इज इक्वल टू आई टी, I इज इक्वल टू क्यू अपन टी, पहले से ही आ गया ये भी। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन कूलम ऑफ चार्ज, और उसके बाद जो है V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम्स का लॉ है। रेसिस्टिविटी R A अपॉन L, और इसी से आप रेसिस्टेंस का भी निकाल सकते हैं, और रेसिस्टेंस जब सीरीज में कनेक्टेड होती है तो R1 प्लस R2 प्लस R3, चाहे जितना भी नंबर ऑफ सीरीज कनेक्शन हो, और अगर पैरेलल में कनेक्शन हो 1 अपॉन Rn, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस नंबर ऑफ कनेक्शन, जितने भी कनेक्शन आप किए हुए हैं। तो now this chapter has been covered. Thank you so much for watching this video.